So lecture number 4 is all about bonds valuation. लेकिन हम इसके जो contents हैं वो आज कुछ यूं स्टडी करेंगे. We will study valuation of bonds. Number 1, we will have a recap about bonds having the finite maturity. जो हमने लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल देखी थी उसको हम रिकैप करेंगे. प्लस we will study zero coupon bonds and perpetual bonds which are also called consols. तो बॉन्ड वैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो आज आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. So let's have a recap of the previous lecture, which was about the bonds with finite maturity, and that is the bond that matures after a certain period of time. वो bond जो कुछ खास मुद्दत के बाद, एक खास number of years के बाद mature होता है, ऐसे bonds को हम कहते हैं. These are the bonds having a finite maturity. We have studied this example लास्ट टाइम कि जिसमें जो कूपन इंटरेस्ट रेट था वो गिवन था. फेस वैल्यू वाज $1000. कूपन इंटरेस्ट रेट वाज 10%. कूपन पेमेंट्स व्हिच वर रिप्रेजेंटेड बाय C and calculated as face value multiply coupon interest rate. That is, in this case, 1000 multiply 10% per annum, that is equal to 100 coupon payments. And maturity having 3 years. Required rate of return represented by RD, that is 14% per annum. And we have to calculate the price of a bond. For the calculation of price of a bond, we have this formula, that is price of the bond PB is equal to C multiply 1 minus 1 plus RD raised to the power minus N over RD plus face value over 1 plus required rate of return raised to the power N. I hope आप सब लोगों को formula में तो कोई problem नहीं होगी. The formula would have been memorized by you till now. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सेंड की थी और उन सब ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ था. दे ऑल अटेम्प्टेड इट सो वेल, बट आई एम वेरी एस्टोनिश्ड. आउट ऑफ दीज 40 स्टूडेंट्स आई हैव रिसीव्ड ओनली द असाइनमेंट्स फ्रॉम ओनली 5 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट ने बहुत लेट सेंड की, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आई विल नॉट चेक दैट असाइनमेंट क्योंकि वो बहुत लेट थी. 1-2 घंटे का डिफरेंस हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन इतना लेट आई विल नॉट चेक इट. सो नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ द डेडलाइंस. So the formula for calculation of the price of the bond is given as in this on your screen. इसकी calculations के बाद we found that the price of the bond is equal to 907. अच्छा, अब इसको repeat करने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक word लिखा हुआ है interest के साथ, वो आप note करें कि the interest is paid annually. इंटरेस्ट इज पेड एनुअली का मतलब है कि जो आपको $100 कूपन पेमेंट्स की फॉर्म में मिल रहे हैं वो आपको जब 1 साल खत्म होता है तो फिर मिलता है. व्हाट इफ कि अगर 1 साल के अंदर आपको दो दफा इंटरेस्ट मिले, 4 दफा मिले, 6 दफा मिले या एक से ज्यादा दफा मिले, तो उस सूरत में हम इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन नंबर 1 कैसे करेंगे और फिर हम उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से करें. Recall some of the concept from the topic, that is time value of money. So time value of money में आपने एक term पढ़ी होगी which is number of compounding periods in a year. Okay, so अगर नहीं पढ़ी तो मैं इसको revise करवा देता हूँ, मैं इसको repeat कर देता हूँ. What are the number of compounding periods in a year and how we can recognize this compounding period in a year, और इसको हम किस फॉर्मूला में किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, यानी इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे फॉर्मूला के अंदर. So first of all, what do you mean by number of compounding periods in a year? Number of compounding periods in a year, ये कब आता है और इसका क्या मतलब होता है? If interest is paid more than one time in a year, ये याद रखिएगा, if interest is paid more than one time in a year, अगर interest एक दफा से ज्यादा दफा पे किया जाए, उस वक्त हमने चेंजिंग्स अप्लाई करनी है. वो क्या चेंजिंग्स होंगी? If interest is paid more than one time in a year, then number of compounding period in a year changes and it is represented by M. अगर इंटरेस्ट आप एक दफा से ज्यादा दफा मिलता है तो जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है वो अप्लाई होगा यहाँ पे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स हैव एन एग्जांपल. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल,
if number of compounding periods in a year are represented at an annual rate, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था, अगर उसने कहा हो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, उस सूरत में डायग्राम देखें तो अगर ये 1 साल का पीरियड है तो इसका मतलब है कि जब 1 साल खत्म होगा यहाँ पे, उस वक्त आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो इन दैट केस m की वैल्यू बनती है 1, मीन्स कि आप m इज इक्वल टू 1 मीन्स कि यू आर गेटिंग इंटरेस्ट 1 टाइम इन अ ईयर. आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 साल में एक दफा मिल रहा है. सेकेंड, if you are getting interest on semi-annual basis, semi-annual basis का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप पूरे साल को, डायग्राम को देखें तो अगर आप पूरे साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, so now you are getting interest 2 times in a year, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 2. आपको एक इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा इंटरेस्ट आपको साल के एंड पे मिल रहा है. so you are getting interest 2 times in a year in the case of semi-annual period. So in that case, the value of m becomes 2. Third possibility is that if you are getting quarterly, if you are getting interest on quarterly basis, तो आपका जो 1 साल का पीरियड है वो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा. That is, this is the first, this is second, this is third and fourth. This is your first period, this is second, this is third and this is fourth. तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो साल में 4 दफा मिल रहा है. क्वार्टरली मींस कि हर 3 माह के बाद आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है. तो हर 3 माह के बाद मिल रही है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको साल में 4 दफा इंटरेस्ट मिल रहा है. तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ m बिकम्स 4. ये याद रखिएगा. उसके बाद अगर बाय मंथली हो, बाय मंथली का मतलब है हर 2 माह के बाद अगर आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम उस साल को 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. लाइक दिस, अगर आप सर्कल्स कैलकुलेट करें तो यू हैव 6 इंटरेस्ट पीरियड्स इन अ ईयर. तो आपके जो कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे वो 6 होंगे, तो इस वजह से m की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 6. यहाँ पे इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड्स हो तो आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हो इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, तो आपके ज़हन में आना चाहिए m इज इक्वल टू 2. इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं याद रखना. अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली, तो आपके ज़हन में आना चाहिए m इज इक्वल टू 4. अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो इंटरेस्ट इज पेड बाय मंथली, तो आपके ज़हन में m इज इक्वल टू 6 आना चाहिए. उसके आगे अभी आपको फिल वक्त सोचने की जरूरत नहीं है. अभी इतना आपको इस वक्त तक आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दी हो तो कंपाउंडिंग पीरियड यानी m की वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पे लिखी होगी. सो इसी तरह अगर मंथली हो यानी हर महीने अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो साल में 12 महीने होते हैं, तो m इज इक्वल टू 4. वीकली हो तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो फॉर दैट m इज इक्वल टू 52. और अगर डेली इंटरेस्ट दिया जाए तो साल में 365 डेज होते हैं, फॉर दैट m इज इक्वल टू 365. So this is basically the concept of compounding frequency and how you can write the number of compounding period in a year. That is written in the second column. And for few of these cases, I have drawn a diagram in which you can see the how the compounding frequency changes your diagram. Now, अगर आपको m की वैल्यू गिवन हो, या अगर एनुअल के अलावा, एनुअली इंटरेस्ट के अलावा अगर इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली दिया हो, अगर आपको क्वार्टरली दिया हो या मंथली दिया हो, तो अगर आपको पता तो चल गया है कि m आपके पास एक वैल्यू की फॉर्म में m इज इक्वल टू 2 आ गया, m इज इक्वल टू 4 आ गया. अब आपने फॉर्मूला में चेंज क्या करना है? जो भी फॉर्मूला आपको गिवन होगा, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ द स्टॉक का फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपने m कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन में से, तो आपने रूल क्या अप्लाई करना है? ये 2 चीजें आप याद रखेंगे. नंबर 1, ऑलवेज डिवाइड इंटरेस्ट रेट विद m. फॉर्मूला के अंदर जहां जहां पर भी इंटरेस्ट रेट है उसको m से डिवाइड कर दें. सिंपल इज दैट. कि आपको अगर m का पता चल गया, m की वैल्यू का पता चल गया है, तो आपने एक काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपको जो फॉर्मूला गिवन है प्राइस ऑफ द बॉन्ड का है,
प्रेजेंट वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू का है। जहां जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट नजर आ रहा है ना, वो बेशक आई की फॉर्म में नजर आए, वो बेशक आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्म में नजर आए, वो बेशक आपको कूपन इंटरेस्ट की फॉर्म में नजर आए। बस अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट आपके सामने गिवन है फॉर्मूला के अंदर, तो आपने एक काम करना है कि उस इंटरेस्ट रेट को एम से डिवाइड कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है आपने, ऑलवेज मल्टीप्लाई एन विद एम। जहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, एन की वैल्यू दी होगी, उसमें आपने क्या करना है कि एन को आपने एम से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल इज दैट। दो चीजें अभी मैंने आपको बताई है कि इंटरेस्ट को एम से डिवाइड कर देना है और नंबर ऑफ इयर्स एन को एम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इज द रूल व्हेन यू आर गिवन द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन अ ईयर अदर देन वन, यानी एक के अलावा अगर आपको सेमी एनुअल से ग्रेटर देन आपको अगर कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, तो उस सूरत में आपने ये दो रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। नाउ दिस वाज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स और इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ये हमने फॉर्मूला प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए जो है वो किया था, पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। जो इंटरेस्ट है वो सेमी, क्वेश्चन के बाकी पैरामीटर्स सेम है, यानी कूपन इंटरेस्ट 10% है, फेस वैल्यू $1000 है, नंबर ऑफ इयर्स 3 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% पर एनम है। इंटरेस्ट लेकिन आप पे कर रहे हैं नॉट एनुअली बट ऑन सेमी एनुअल बेसिस। इन दिस केस अगर आपको यहाँ पे एनुअली नहीं सेमी एनुअली गिवन हो, तो उस सूरत में वही फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जो कि एनुअल का था, उसमें मैंने चेंज क्या करना है, पहली चीज जो इंटरेस्ट है उसको एम से डिवाइड कर देना है। कूपन आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट रेट से, तो सी को मैंने एम से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आगे आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैंने एम से डिवाइड कर दिया। रिक्वायर्ड और यहाँ पे एन है यानी नंबर ऑफ ईयर्स, उसको मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीचे भी लिखा हुआ है, उसको मैंने एम से डिवाइड कर दिया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको भी एम से डिवाइड कर दें। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नजर आ रहे हैं, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दें। So this is basically the small change in your question that requires you to divide interest rate with M and multiply number of years with M. यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट वो कह रहा है that interest is paid semi annually, इसका मतलब है कि साल में 2 दफा इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। यानी सेमी का मतलब है हाफ, एनुअली का मतलब है ईयर। ईयर को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 2 दफा वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो यहाँ पे M की वैल्यू होगी 2। सो फॉर्मूला में मैं पुट करूंगा सी यानी 100 आपकी कूपन पेमेंट्स हैं, उसको 2 से डिवाइड किया। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0.14 है, 14 है, उसको 2 से डिवाइड किया। 3 नंबर ऑफ इयर्स ने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी 14%, उसको 2 से डिवाइड किया। 14% को 2 से डिवाइड किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 905.67। The price of the bond is 905.67. In our previous case, price of the bond was 907. पहले 907 थी, अभी मैंने कैलकुलेट की तो दैट इज 905.67। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर इफ इंटरेस्ट इज पेड मंथली, ठीक है। अब ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट इज पेड मंथली। अगर इंटरेस्ट मंथली पे किया जाए, अलीना आप इसको गौर से सुनिएगा, अगर इंटरेस्ट मंथली पे किया जाए तो एम की वैल्यू पहले 2 कैसे आई थी, अब एम की वैल्यू क्या रखेंगे। अब एम की वैल्यू हम ये रखेंगे कि अगर इंटरेस्ट मंथली पे किया जा रहा है, हर मंथ में पे किया जा रहा है, एक मंथ एंड होता है तो इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर हर माह के बाद इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो साल में कितनी दफा इंटरेस्ट पे किया जाएगा, साल में कितनी दफा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अगर हर माह के बाद इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, हर माह के बाद, जनवरी के एंड पे भी पे किया जा रहा है, फरवरी के एंड पे भी और मार्च के एंड पे भी, इसी तरह हर महीने के एंड पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली यू आर गेटिंग 12 टाइम्स इंटरेस्ट इन अ ईयर, जैन मुनीर, दैट इज करेक्ट। अगर हर महीने के एंड पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो साल में 12 दफा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इन दिस केस द वैल्यू ऑफ m विल बिकम 12। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो 12 होगी। फॉर्मूला के अंदर जहां पे m है वहां पे 12 पुट करूं तो आई विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 12।
0.14 divided by 12, 3 multiply 12, 14 divided by 12, 0.14 divided by 12, 3 multiply 12. And I will get the answer as 902.14. So this was the changes in the formula. कोई भी formula आपको time value of money में हो, या आपको price of the bond में हो, या आपको price of the stock में हो, सिर्फ एक सिंपल रूल आपने याद रखना है कि इंटरेस्ट को m से डिवाइड कर देना है आफ्टर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ m which is given in the question के अंदर आपको बता देगा कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या मंथली है. इस केस में मंथली हमने पढ़ा. मंथली का मतलब है कि हर महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट आफ्टर एवरी मंथ, तो साल में 12 दफा आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो यहाँ पे m की वैल्यू 12 होगी. So in this case, I have price of the bond is equal to 902.147. Okay. Now, next is our topic number 2, which is zero coupon bonds. Okay. Next is the topic that is zero coupon bonds. पहले हम इसकी definition देखते हैं, फिर हम इसकी valuation की तरफ जाते हैं. Definition इसकी क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स किसको कहते हैं? अगर आप इसकी टर्मिनोलॉजी को ही नोट करें तो आपको समझ आ जाएगी. कूपन के साथ वर्ड लिखा हुआ है जीरो, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो कूपन पेमेंट्स नहीं करते होंगे. सो दे आर नॉट पेइंग एनी कूपन पेमेंट्स. ठीक है, तो ये वो वाले बॉन्ड्स होंगे जो कूपन पेमेंट्स नहीं करते होंगे. सो इसकी डेफिनेशन, अ बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट, एक वो बॉन्ड जो कि इंटरेस्ट पे नहीं करता, कूपन इंटरेस्ट पे नहीं करता, सिंपल इज दैट, बट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड. ठीक है, पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि कूपन पे नहीं करते, कूपन इंटरेस्ट पे नहीं करते, नंबर 1. दूसरी लाइन में वो ये कह रहे हैं बट के आगे सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू, लेकिन ये इनकी जो प्राइस होगी वो उसकी हमेशा फेस वैल्यू से बहुत कम होती है. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर होती है. बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड वो वाले बॉन्ड्स होते हैं जो कूपन पेमेंट्स नहीं देते. फॉर दैट CI is equal to 0%. These bonds having coupon interest rate is equal to 0%. तो उसको मेंशन ही नहीं किया जाता. एग्जांपल देखते हैं. Suppose Estonia Enterprises issues a zero coupon bond having a 10-year maturity and a face value 10,000. If your required rate of return is 12% per annum, find the price of the bond. इसके अंदर आपको एक तो 10 year maturity बताइए, यानी इसकी जो maturity है वो 10 years, इसकी face value 1000, given information में आप इसको लिखेंगे, और इसका required rate of return है 12%. सिंपली इसका जो प्राइस होगी वो होगी इसकी फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस RD रेज़ पावर. इसका फॉर्मूला होगा. इसका फॉर्मूला पहले चेंज होगा क्योंकि आपकी कूपन पेमेंट नहीं है. तो इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी उसमें कूपन पेमेंट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ था 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस RD रेज़ टू पावर N ओवर RD. तो वहां पे चूंकि कूपन पेमेंट्स ही नहीं है तो C की वैल्यू 0 होगी. वो सारे का सारा जो आपका पोर्शन है वो 0 हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली फेस वैल्यू. तो फॉर जीरो कूपन बॉन्ड आपने ये फॉर्मूला याद रखना है. जब अगर आपको जीरो कूपन बॉन्ड दिया होगा तो सिंपल इसका फॉर्मूला ये होगा कि आपने फेस वैल्यू को डिवाइड करना है 1 प्लस RD रेज़ टू द पावर N. सो इन दिस केस फेस वैल्यू है 1000 और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%. तो 12% की जगह मैंने 0.12 लिखा और नंबर ऑफ इयर्स हैं 10. इसको सॉल्व किया तो जो वैल्यू आई दैट इज 322. The price of the bond is 322. Simply coupon bond have this formula, और आपके पास कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं लिखी होती तो दिस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व. This is very simple to solve. Now, the topic number 3, which is the last topic of today's lecture. अब क्या हैंड फ्यू उतार दिया मैंने. Topic number 3, which is the perpetual bond, and that is also called consols. इसकी सबसे पहले consols, इसकी definition देखते हैं फिर valuation की तरफ आते हैं. Perpetual bond
या कंसोल क्या होते हैं? A bond that never matures, a perpetuity in the form of bond. ये वो बॉन्ड्स होते हैं, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कभी भी मेच्योर नहीं होते, यानी जिनके लिए आपकी एन की वैल्यू नहीं गिवन होती, इसमें इसकी मेच्योरिटी डेट नहीं दी होती। परपेचुटी मैंने आपको बताया था, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो लगातार इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती रहती हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमेशा के लिए दी जा रही हो, जो कभी मेच्योर ना हो, उनको हम परपेचुअल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू कुड बाय अ बॉन्ड दैट पेड $50 a year forever. Assume that your required rate of return for this type of bond is 12%. What will be the present value of this bond? इस बॉन्ड में आपको दो चीजें सिर्फ दी होंगी, ये याद रखिएगा। एक आपको दिया होगा कूपन पेमेंट्स दैट इज $50, और दूसरा आपको दिया होगा कूपन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 12%। ये दो चीजें आपके यहाँ चाहिए। कूपन आपको जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं चाहिए, और आपको फेस वैल्यू भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो कूपन इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि इसने इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया आपको, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, उसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया इसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ये है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हो तो साथ उसने फेस वैल्यू भी दी हो उस केस में आपने कूपन पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि फेस वैल्यू $1000 और कूपन पेमेंट्स हैं 50, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करनी है आपने। इस केस में जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो क्या है? C/RD, यानी कूपन पेमेंट्स को आपने डिवाइड कर देना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। दैट इज कूपन पेमेंट्स है आपकी $50, और इसको आप 0.12 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 416.67। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, आपको याद रखिएगा। वेन हॉर्न से आप करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम का पेज नंबर 90-91 पे, और प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 9 पेज नंबर 91-92 से, और गेटमैन से प्रॉब्लम आपका 16 to 19 पेज नंबर 260 से। ठीक है, अब आपकी क्वेश्चन आंसर का है सेशन। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही थी। अगर कोई डिस्टॉर्शन है, किसी ने कुछ समझना है तो अभी आप मुझसे